جان سے زیادہ خیال کرنا۔ وہ بی بی شیمہ کہنے لگی اماں اماں آپ پریشان نہ ہوئیے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے قریشی بھائی کا خیال کروں گی۔ وہ کہتی ہے پیارے پیغمبر کی انگلی کو پکڑا، میں نے ان کو لے گئی وہاں بکریاں چرانے کے لیے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بکریاں سارا دن ایک ٹیلے پہ بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھی رہتی ہیں، گھاس نہیں چرتی، دانا نہیں، گھاس نہیں چرتی، گھاس نہیں کھا رہی، بیٹھی رہتی ہیں، میرے قریشی بھائی کا دیدار کرتی رہتی ہے، ان کو دیکھتی رہتی ہے، جب گھر آتی ہیں شام کو ساری کی ساری دودھ دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ نور نبوت کی برکت ہے۔ بکریاں گھاس نہیں چر رہی، پیارے آقا کی زیارت کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، شام کو دودھ دے رہی ہیں۔ لوگ آئے، حلیمہ کے پاس آئے، کہا بی بی حلیمہ بات تو بتا، وجہ کیا ہے؟ ہمارے بکریاں جو ہے، لوگوں نے یہ کہا اپنے بچوں کو آپ ایسا کرو کہ ہماری بکریاں بھی وہیں اس چراگاہ میں لے جاؤ جس چراگاہ میں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، وہیں چراگاہ میں جا کے چراؤ، اس کی بکریاں تو دودھ دے رہی ہے، ہماری بکریاں کیوں دودھ نہیں دیتی؟ تو لوگوں نے یہی ہیلا شروع کر دیا کہ اپنی بکریوں کو ان چراگاہ میں چرانا شروع کر دیا، لیکن ان میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی بکریوں نے دودھ نہیں دیا۔ وجہ کیا تھی؟ پیارے پیغمبر اس گھر میں تھے، آقا کی برکت سے وہ برتن دودھ کے بھر جاتے تھے، آقا کی برکت سے، آقا کے نور نبوت کی وجہ سے اللہ نے حلیمہ کی بکریوں میں دودھ جاری کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ پیارے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، یہ پیارے پیغمبر کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ ایک دفعہ ایک اونٹ آیا، پیارے پیغمبر کو شکایت کر رہا ہے آقا میرا مالک جو ہے مجھے ٹائم پہ گھاس نہیں کھلاتا، مجھے ٹائم پہ پانی نہیں دیتا۔ اسی طرح کچھ بھیڑیے آئے، مسجد نبی کے دروازے پہ بیٹھ گئے، شکایت کی پیارے پیغمبر آپ اجازت دے دیجئے، آپ کے صحابہ کی بکریاں چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم ان سے شکار کر لیں۔ اور فرمایا کہ وہ بھیڑیا کہتا ہے آقا ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ کے صحابہ کی بکریوں کو یوں ہی اٹھا لیں، ہمیں شرم آتی ہے، آپ ان سے اجازت لے دیجئے، اگر یہ اجازت دے دیں ہم ان کی 2-4 بکریاں اٹھا لیا کریں۔ تو صحابہ کو بلایا جن کے ریوڑ تھے، ان سے کہا کہ یہ بھیڑیا اجازت مانگنا چاہتا ہے، تو بتائیے کون ہے جس کی یعنی اس طرح کا مال ہو، بکریاں ہو یا جانور ہو، وہ کیوں کسی کو کہے گا کہ میری بکری اٹھا لیجئے، اس کو کھا لینا، چیر پھاڑ دینا۔ ہر ایک کو اپنے پالتو جانور کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے، انس ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ، آپ میں سے کتنے بھائی، آپ میں سے کتنے دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے بکریاں پال رکھی ہیں، جانور پال رکھے ہیں؟ ان سے پوچھئے کہ آپ کو ان جانوروں سے کتنی محبت ہے، ان بکریوں سے کتنی محبت ہے، ان پرندوں سے کتنی محبت ہے۔ صحابہ کہنے لگے آقا ہم اجازت نہیں دے سکتے، ہم یہ کیسے برداشت کر سکیں گے کہ ہماری بکریاں یہ کھا لے، ہم اجازت نہیں دیتے۔ کچھ دن گزرے، وہ بھیڑیے پھر واپس آئے، کمزور لاغر ہو گئے، وہ کمزور بالکل ہڈیاں ڈھانچے نکل آئے، کہنے لگے آقا ہفتہ ہو گیا ہے ہم نے ابھی تک گوشت نہیں کھایا، آقا ہم پریشان ہیں، آپ ان صحابہ سے اجازت لے دیجئے، ہم بغیر اجازت کے ان کی بکریاں نہیں کھا سکتے۔ آؤ دیکھو میرے بھائیوں، بھیڑیا بھی میری نبی پر فدا ہے، جانور بھی میرے نبی پر فدا ہے، تمام کے تمام انسان بھی میرے نبی پر فدا ہے، تمام فرشتے، ملائکہ، جن و انس، پوری کائنات میں رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوق میرے نبی پر فدا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ پہلی بہار 2 دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ جب کومپلیں، جب اس کے اندر یہ پتے وغیرہ، یہ جو کومپلیں وغیرہ نکلتی ہیں، یہ پہلا زمانہ بہار کا۔ دوسرا زمانہ بہار کا تب آتا ہے جب پھل لگتے ہیں، جب وہاں پہ سبزہ ہوتا ہے، پھل لگتے ہیں۔ 2 زمانے بہار کے ہیں۔ ایک میرے نبی کے بہار کا زمانہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر دورہ تھا، کائنات کے اندر امن خراب ہو گیا تھا، لوگ جو ہے بیٹی کی عزت نہیں کرتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کرتے، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں سے کوئی محبت نہیں کرتا، باپ کو دھکے دیتے تھے، باپ کو گالیاں دیتے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے، اللہ نے سارے ظلمتوں کے دور ختم کر دیے، اللہ نے یہ اعلان کر دیا آج کے بعد بیٹی کا احترام کرو گے، آج کے بعد بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھو گے۔ کائنات نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، پیارے پیغمبر، یہودی کیا عیسائی، اس وقت کے کافر لوگوں کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے۔
कायनात को बता दिया, ये न देखना ये बेटी किसकी है, ये काफिर की है, ये देखना कि ये इंसान है। प्यारे पैगंबर ने उन काफिर यहूदी बेटियों के सरों पे भी दुपट्टा रखा है। मेरे भाइयों, आज हम कैसे मुसलमान हैं जो अपनी मुसलमान बहनों के दुपट्टे खींच रहे हैं। आए दिन वाकयात हो रही हैं, रोजाना की बुनियाद पे अखबारों में खबरें लगती हैं कि किसी दरिंदा सिफत इंसान ने, इंसान कहना बड़ी दूर की बात, ये तौहीन होगी अगर उसको इंसान कहा जाए, किसी दरिंदा सिफत शख्स ने एक मासूम बच्ची 5 साल 6 साल 2 साल हत्ता के 2 साल अल्लाहु अकबर, हमारे रिश्तेदार हैं, लाहौर में रहते हैं, हमारे अजीज हैं, उनका बच्चा 2.5 साल का मस्जिद में खेल रहा था, एक बदबख्त ने उसके साथ बदफेली, मासूम 2.5 साल का बच्चा, उसको अस्पताल में लेके इमरजेंसी हफ्ता पूरा रहा। ये किस तरह की इंसानियत है, ये कहां से लोग आए हैं, ये कौन सा दर्द लेके फिर रहे हैं, ये चाहते क्या है। मेरे भाई, मेरे नबी जो दर्स दे के गए हैं, वो अमन का दर्स दे के गए हैं, वो मोहब्बत का दर्स दे के गए हैं, वो जानिसारी का दर्स दे के गए हैं। सहाबा के वाक़यात को देखिए, सहाबा की जिंदगी को पढ़िए, यहाँ पे फज़ाइल आमाल एक किताब है, इसको उठाइए, इसके एक वाक़या पढ़िए। एक सहाबी के घर में किसी ने सीरी जो है बकरे की सीरी हदिया के तौर पे दी, उन्होंने अपने साथ वाले के घर भेज दी, कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये ज्यादा जरूरतमंद है। उन्होंने अपने दूसरे तीसरे साथी के घर, तीसरे ने चौथे, चौथे ने पांचवें, पांचवें ने छठे, सातवें, 7 घरों का चक्कर लगाकर उसी पहले सहाबी के घर में सीरी आ गई है। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह की तरफ से ज़ियाफत है, आज अल्लाह की तरफ से दावत है, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको बनाते हैं और खा लेते हैं। एक दफा आखिरी बात कर रहा हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक मेहमान आया, तो आपने मस्जिद नबी में बैठ के ऐलान किया कि कौन है जो इसकी ज़ियाफत करेगा, मेहमान नवाजी करेगा। सारे खामोश। एक सहाबी खड़े हो गए, आका मैं ज़ियाफत करूँ। तो आपने फरमाया कि ये तेरा मेहमान है, ले जाओ, इसकी ज़ियाफत करना, वहां ठहराना अपने घर में। अब सहाबी जो है घर गए, बीवी से पूछा खाने के लिए कुछ है, आगे से जवाब सुनिए। बीवी कहने लगी, तेरे मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या? तेरे मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है, इन मासूम बच्चों के लिए रोटी के टुकड़े पड़े हैं, इन मासूम बच्चों के लिए कुछ सालन रखा हुआ है, इन मासूम बच्चों को खिलाऊंगी, इनके लिए रखा है, तेरे मेरे लिए कुछ नहीं है। वो सहाबी रसूल कहने लगा अपनी बीवी को, मेरे पास एक मेहमान है, वो मेरा मेहमान नहीं है, अल्लाह के हबीब का मेहमान है। मेरी सारी कायनात, मेरी सारी जिंदगी, मेरी सारी चीजें, मेरी औलाद प्यारे पैगंबर की जूतियों पे फिदा हो जाएगी। मैं प्यारे पैगंबर पे फिदा हूँ, ये प्यारे पैगंबर का मेहमान है, आज इसको भूखा नहीं सुलाएंगे। आप ऐसा करो, अपने बच्चों को भिला पुसला कर सुला दो, आज इस मेहमान को खाना खिलाएं। फिर क्या हुआ? रात हुई, अंधेरा छा गया, तो सहाबी रसूल ने कहा कि आप जब खाना रख के जाएं तो ये उस वक्त जो है दिए हुए चला करते, लालटीन ये दिए ये जला करते। कहा कि दिए को ठीक, चिमनी को ठीक करने के बहाने बुझा देना, अंधेरा कर देना। अब क्या हुआ? रोटी थोड़ी सी थी, उन्होंने बेगम से कहा कि वो दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया। अब सहाबी रसूल और मेहमान साथ बैठे हैं, दरमियान में खाना है। अब सहाबी जो है साथ, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह, खाना शुरू करिए। अब जैसे ही खाना शुरू किया, ये वाले साथी जो मेजबान थे मुंह चबाते रहे, खाया कुछ नहीं। सुबह हुई, प्यारे पैगंबर के पास के, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, फरमाया वलौ काना बिहिम खसासा, फरमाया कि वलौ काना बिहिम खसासा। इससे पहले आयत का जुमला वज़न से निकल गया, इसका मफहूम यह है, फरमाया कि प्यारे पैगंबर आपके सहाबा में से, आपके जमात में से, आपके गुलामों में से ऐसे लोग भी हैं जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। सहाबी रसूल जब आए, प्यारे पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे लाडले सहाबी, बता तूने रात क्या किया है, तूने क्या किया है, तेरी शान में अल्लाह ने कुरान उतार दिया है, तूने क्या किया है। वो प्यारे सहाबी पहले जो है कांपने लगे, परेशान हो गए कि प्यारे पैगंबर क्या कह रहे हैं, मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी जो अल्लाह ने मेरे बारे में कुरान उतार दिया। प्यारे पैगंबर ने उनको गले से लगाया, चूमा, कहा कि खुशखबरी है तेरे लिए, अल्लाह ने तेरे बारे में कुरान उतार दिया। फरमाया कि तेरे बारे में कुरान में ये कह दिया, ऐसे लोग भी हैं,
ایسی जमात भी है जो अपने पेट को भूखा रखकर दूसरों के पेट को भरते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को मुंह में लुक़्मा देते हैं। तूने कौन सा अमल किया है? वो सारी बात सहाबी ने बताई कि हमारे घर में खाना थोड़ा था, बच्चे भूखे थे। मैंने बीवी से कहा बच्चों को बिला फुसला के सुला दो, आज अल्लाह के नबी के मेहमान को खाना खिलाना है। फिर हमने वही खाना उस मेहमान के सामने रखा, फिर तितियों को बंद कर दिया और मैं साथ बैठा रहा। मैंने खाने का एक लुकमा नहीं खाया, मुंह को चबाता रहा, ये कि मेरा मेहमान ये समझे कि ये भी खा रहा है। वो मेहमान ने पेट भर के सैर होके खाना खा लिया है। प्यारे पैगंबर ने कहा खुशखबरी है तेरे लिए, अल्लाह ने तेरी शान में कुरान उतार दिया है कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी जात पर दूसरे को तरजीह देते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। आज हम अपने आप को देख लें, हमारी हालत क्या है? हम किस नौइयत के मुसलमान हैं, किस लेवल के मुसलमान हैं? हमारे अंदर इंसानियत कहाँ खत्म होती है, हमारे अंदर मुसलमानियत कहाँ खत्म होती है? हर बंदा अपना मुहासबा करे, अपने सीने में झांक कर देखे कि आया मैं किस किस्म का मुसलमान हूँ, किस नौइयत का मुसलमान हूँ, किस लेवल का मुसलमान हूँ, मेरी जिंदगी कितनी ईमान वाली है। आखिरी बात कर रहा हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब प्यारे पैगंबर के दामन को पकड़ा, अबू बकर थे, नाम अबू बकर था। कभी उनका नाम किताबों में अब्दुल शम्स भी आया है, अब्दुल काबा भी आया है, नाम अबू बकर है। कोई पहचान नहीं है, कोई मारिफत नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। नबी की गुलामी में आए, नाम अबू बकर है। जब नबी के दामन को पकड़ा, अल्लाह ने अबू बकर से सिद्दीक बना दिया है, कायनात का खलीफा बना दिया है। नाम उमर है, कोई नहीं जानता, बकरियां चराना, ऊंट चराना नहीं आता, कभी पूंछ से पकड़ रहे हैं, कभी कहां से पकड़ रहे हैं, कोई नहीं जानता। जब प्यारे पैगंबर की गुलामी में आए, प्यारे पैगंबर के दामन को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह ने उमर से फारूक कर दिया, अदालत का डंका बजवा दिया। कहा पूरी कायनात के अंदर उमर तू चला जाएगा, उमर तू कब्र में चला जाएगा, लेकिन क़यामत के आखिर, क़यामत के शुरू तक पूरी कायनात में उमर तेरे कानून को नाफिज कर दूंगा। आओ, नाम उस्मान है, कोई पहचान नहीं है। जब प्यारे पैगंबर के गुलाम बने, प्यारे पैगंबर के दामन को पकड़ा, अल्लाह ने उस्मान ज़िन्नुरैन कर दिया, उस्मान गनी लक़ब दे दिया। नाम अली है, कोई पहचान नहीं है, गरीब घराने का है, हाँ हाशमी खानदान का है। जब प्यारे पैगंबर की गुलामी में आया, बच्चा सदा कलमा पढ़ लिया, प्यारे पैगंबर की जो है उस निस्बत में आया, प्यारे पैगंबर की तरबियत में आया। अली नाम था, अल्लाह ने अली अल मुर्तज़ा कर दिया, हैदर कर्रार कर दिया, शेर खुदा कर दिया। वो अली वो है। आओ मैं आपको बताऊं, अली फकत अली नहीं है, अली हैदर है, अली सफदर है, अली शेर खुदा है, अली शेर बबर है। अली एक है, खैबर के किले को तोड़ता है, 8 मन के दरवाजे को अली ने पांव के ठोकर से उड़ा दिया। आओ फिर आगे चलिए, अली के लफ्ते जिगर मेरे नबी की गुलामी में आए, अली के लफ्ते जिगर हसन हुसैन जब नबी की गुलामी में आए, अल्लाह ने ये शान और इम्तियाज दी कि वो हुसैन कुरान पढ़ता जा रहा है, सज्दे की हालत में है। अल्लाह ने उस कुरान की बरकत से, उस सज्दे की हालत से आज तक हुसैन के तज़किरे को देखा। हुसैन ने सर कटा दिया, लेकिन अल्लाह का सज्दा नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ी। मैं और आप हैं, बारिश क्या हो गई, थोड़ी सी आंधी क्या आ गई, थोड़ी सी गर्मी क्या हो गई, सर्दी क्या हो गई, कोई नहीं आज तो मस्जिद नहीं जाना, आज करे नमाज पढ़ने हैं, कोई नहीं मौलवी में कल नहीं पड़ेगा, आज फलाना कल नहीं पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये ईमान कैसा हुआ? ये ईमान कमजोर है। ईमान मजबूत हो, ईमान इतना मजबूत हो, हुसैन जैसी झलक नजर आए, अली जैसी झलक नजर आए, उस्मान जैसी झलक नजर आए, उमर जैसी झलक नजर आए, मुआविया जैसी सियासत नजर आए, ईमान इतना मजबूत हो, अबू बकर जैसी झलक नजर आए। मेरे भाइयों, हम सारे आशिक रसूल हैं, दावा तो करते हैं, लेकिन इश्क नजर नहीं आता। आज से इरादा करके उठो, आज से वादा करके उठो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को जमा के दिखाएंगे। कुफ्र डरता है डरे, कुफ्र कुछ कहता है करे, हमें कुछ कहे, लेकिन हम अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। हम इस नबी की सुन्नत को पूरा करेंगे। गली से गुजरेंगे, लोग कहेंगे देखो नबी का आशिक जा रहा है, नबी की सुन्नत को सजाए हुए है, नबी की सुन्नत अमामा को पहना हुआ है, नबी की सुन्नत दाढ़ी को रखा हुआ है। मेरे भाइयों, ये